Assalamu alaikum, and today it's lecture number 10, the same course, the same person. The code is 563 and the name of the course is Operation Strategy. My name is Dr. Anil Salman and I will be with you for the next 60 minutes, I suppose. And today, if you remember, let's just go for the recap of the lecture. If you remember, in lecture number 9 we talked about the quality. What is the concept of quality and how people interpret quality in their notions, how customer look quality, how suppliers look quality, how operations manager think of quality. Then we talked about importance of quality, and then there were three gurus of quality. One was Deming, one was Crosby, and one was Juran. So these three quality gurus gave their different concepts of quality. After that, we talked about the ISO 14000, ISO 9000 and the Balraj Awards, because these are another forms of quality. On one side we are looking at the product, and on the other side we are looking at the service, the management protocols. Uske baad we did discussed a lot in detail why quality is important, what is the elements of total quality management, and reason why we are actually bringing quality at this point of time in operation strategy, because we think that operation strategy ka jo synonym hai ya operation strategy ka jo substitute hai, that is quality. Because whenever you are talking to an operations manager, what they would say is that in order to have excellence in operations, we are having good quality system, we are having lean management, we are having total quality management, we are having lean systems, and we are having business re-engineering का concept. ठीक है? So इन चार के साथ they start thinking कि जी ये हम operations को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं. But we have already discussed at a stretch that operation strategy is not like that. They may be a very smaller or sub part of your operation strategy. Yes, they help in managing operations. Yes, they help in bringing quality operations. But we can't, or I would say कि जितना मेरा operations में काम रहा है, I would not say कि these TQM, lean management या ये जो है, they are the substitutes for operation strategy, because operation strategy is somewhat the roadmap with reference to your operations. Anyway, so we talked about the elements of total quality management, और फिर एक हमने मॉडल पढ़ा था European Foundation for Quality Management. European Foundation for Quality Management, if you remember, there was a complete chart था, and then we analyzed कि जी कौन सा which are the enablers and which are the outputs, और किस तरीके से हम अपनी एक organization के अंदर different factors आपकी quality को improve करते हैं. And last but not the least, we talked about Deming के जो 14 points थे and how they are linked up with your operation strategy. Now, Barkef के these are very important, but remember के operation strategy is a complete holistic concept, और ये आपको क्या करते हैं, ये complement कर रहे होते हैं. इस book के अंदर he has used कि जी they are the substitutes for operation strategy, but again you can't just bring this concept and you can say कि जी हमने substitution कर ली है, या this is how it is going to move forward, because when we are talking about quality is almost everywhere. अगर operations की बात करते हैं तो ठीक है, there is a quality in the product. अगर आप marketing की बात करते हैं, there has to be a quality marketing service. If you are talking about customer service, तो वहाँ पे भी आपकी quality होनी चाहिए. So you can't say कि जी quality is a kind of action, because अगर quality नहीं होगी तो obviously आपका product sale होगा ही नहीं. ठीक है ना? So it's not something कि जो अभी हम लेके आए हैं अपने ऑपरेशन से. It was always there. अगर एक प्रोडक्ट चीप है तो आपको खुद ही एक एस्टिमेट हो जाता है कि मे बी इसकी क्वालिटी नहीं अच्छी. if the product is pricey, you would say कि जी इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है. So if we are talking about quality in a sense कि जी it is an intervention in operations, I would say somehow it's believable, but otherwise you can't say कि जी just with the
intervention of quality our operation strategy is of no use, because quality is now at the moment आप किसी भी चीज़ को उठा ले, it is mandatory, it has to be there, because अगर आपके product में quality नहीं होती then obviously people are not going to take your product. So डेमिंग के फिर हमने 14 पॉइंट्स किए, एंड द ब्यूटी ऑफ दैट लास्ट लेक्चर वाज कि डेमिंग के 14 पॉइंट्स को हमने लिंक अप किया था अपनी ऑपरेशंस स्ट्रैटेजी के साथ, राइट? Now, let's talk about another dimension. Even though I was supposed to teach you, हमने TQM खत्म किया था, then we were supposed to move to lean management and business re-engineering, or there's lean management, business process re-engineering, उस पे हमने बात करनी थी. But I thought कि we need to focus on some of the सर्विस स्ट्रैटेजी जो मॉडल है वो थोड़ा सा हम बता दें, क्योंकि आगे चल के हमने इस पे काफ़ी एप्लीकेशन करनी है. सो आई एम जस्ट टेलिंग यू व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्विस, हाउ दे आर डिफरेंट, एंड हाउ वी कैन ब्रिंग क्वालिटी इनटू दिस पर्सपेक्टिव आल्सो. सो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्विस? नंबर वन, एंड द क्रूशियल फैक्टर इज कि सर्विसेज क्या होती हैं? दे आर इंटैंजिबल, you cannot touch it, right? Then comes they are not the finished goods, and therefore आप ये नहीं कह सकते कि जी हमने ये सर्विस कर दी और हम इसकी इन्वेंट्री बना लेते हैं. सर्विसेज आर डिफरेंट फ्रॉम दैट एस्पेक्ट. देन सर्विस की एक और जो खासियत है that there is simultaneous production and consumption that is going on, and then you cannot look out for quality in a sense, because difficulty in defining and measuring quality and productivity. If I'm in a good mood, my service will be very good. If I'm in a bad mood, my service is really going to be bad. So therefore we can't just apprehend कि जी सर्विस के लिए ये पैरामीटर्स है. हाँ, कुछ सर्विस मॉडल्स होते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, लेकिन उसको मेजर करना रिलेटिवली डिफिकल्ट होता है एज कम्पेयर टू जब हम टैंजिबल प्रोडक्ट्स की बात कर रहे थे. उसके बाद देन सर्विसेज की पेरिशेबिलिटी, को ये नहीं होता कि एक्सपायर हो जाना है, इट कीप ऑन कंटिन्यूइंग. देन अब अगर आप देखें कि इन यूएसए व्हाट जॉब्स हैव बीन डूइंग वाज दैट इन यूएसए की इकोनॉमी में एंड अदर इकोनॉमीज व्हाट वी हैव बीन डूइंग इज के आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग की जॉब्स थी उसके अंदर बहुत बड़ा शिफ्ट आया. ठीक है, राइट नाउ इट्स 2010s, लेकिन अगर 40s 50s 60s 70s 80s और 90s में देखें, सो यू आर एक्चुअली लुकिंग एट डाउनवर्ड ग्राफ. और ये डाउनवर्ड ग्राफ इसका है दैट मैन्युफैक्चरिंग की जो जॉब्स थी, द रेट बाय विच पीपल वर बीइंग एम्प्लॉयड इन द मैन्युफैक्चरिंग टिल 1940s आफ्टर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग हुई. बट later on there has been a shift, और shift क्यों हो गया? that people have started moving towards services. Now why they are moving towards services? because manufacturing ठीक है, प्रोडक्ट आपने बहुत अच्छा बना दिया, लेकिन अगर आपको प्रोडक्ट को सेल करना नहीं आता, that is fine. अगर आपने बिजनेसेस आपके एक्सपैंड करते जा रहे हैं, बैंकिंग इज अ सर्विस, बिजनेस आपको ट्रेडिंग ज़्यादा होगी, इंश्योरेंस इज अ सर्विस, हॉस्पिटल, एवरीथिंग दैट इज सर्विस. ठीक है, सो ज़्यादा से ज़्यादा जॉब मैन्युफैक्चरिंग के बाद फिर क्या आई? आपकी सर्विसेज की आई, क्योंकि ज़्यादा ह्यूमन लेबर वहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा था सर्विसेज के अंदर, बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग के अंदर एक तो ऑटोमेशन आ गई थी, दैट्स व्हाई पीपल वर रिप्लेस्ड बाय मशीन्स. देन यूरोप में सर्विस के बारे में क्या कहता है? द सर्विस सेक्टर अकाउंट्स अबाउट 70% of the European economy. This is the like share of service sector in Europe. Now अगर हम इनको देखें कि जी सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग में फ़र्क क्या है, बिकॉज देन यू वुड से कि जी हम एक ऑपरेशन स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, यू आर मेकिंग एन ऑपरेशन स्ट्रैटेजी फॉर अ बैंक एंड यू आर मेकिंग एन ऑपरेशन स्ट्रैटेजी फॉर एग्जांपल फॉर अ शैम्पू. ठीक है, एक मैन्युफैक्चर्ड गुड है और एक सर्विस है. अब दोनों के डायनामिक्स फ़र्क होंगे. रिमेंबर दैट कि जब हम ऑपरेशन स्ट्रैटेजी जो बनाएंगे उनके जो आउटपुट्स होंगे वो थोड़े से फ़र्क होंगे. ठीक है, अब मैन्युफैक्चरिंग में अभी वही वाली हम बात कर रहे थे कि जी द प्रोडक्ट इज़ टैंजिबल. ठीक है, जबकि सर्विस के अंदर द प्रोडक्ट इज़ इनटैंजिबल. इट वुड वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. देन ओनरशिप इज़ ट्रांसफर एट द टाइम ऑफ परचेज. द मोमेंट आपने ट्रांजैक्शन कर दी, मैंने कहा जी आई वांट टू बाय अ फ़ोन, आपने पैसे दिए और आपको फ़ोन मिल गया, आपकी ओनरशिप क्या हो जाती है? ट्रांसफ़र हो जाती है. लेकिन when you are actually going for a service, आपकी ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होती. यू गो टू अ बार्बर शॉप, आपने बाल कटवाया, बार्बर आपका नहीं हो जाता उस घंटे के अंदर. ठीक है, यू गो टू अ बैंक, आपने बैंक से कोई ट्रांजैक्शन की, अपना अकाउंट हुआ, लेकिन बैंक डजंट बिलोंग टू यू, लेकिन वहाँ पे आप पैसे दे के
प्रोडक्ट आपका हो जाता है. सो दैट्स व्हाई दैट इज अ वेरी मेजर डिफरेंस बिटवीन सर्विस एंड प्रोडक्ट. देन प्रोडक्ट को दोबारा फिर से आप रीसेल कर सकते हैं, लेकिन सर्विस एक दफ़ा आपको मिल गई उसके बाद आप उसकी रीसेल नहीं कर सकते. देन द प्रोडक्ट कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड बिफोर परचेज. ये जो मैन्युफैक्चरिंग होता है इसके अंदर हम प्रोडक्ट्स के डेमो दे सकते हैं कि कैसा है, हाउ डज इट रन, डू यू लाइक इट और नॉट, सो दैट कैन बी रीसोल्ड. बट द सर्विस डज नॉट एग्जिस्ट बिफोर परचेज. जब तक आपने सर्विस खरीदी नहीं उससे पहले आपकी सर्विस यू कैन नॉट हैव अ डेमो फॉर दैट. देन द प्रोडक्ट कैन बी स्टोर्ड इन एन इन्वेंट्री. टैंजिबल गुड है, आपने बना लिए ज़्यादा सारे और आपने उसको इन्वेंट्री में सेव कर लिया, लेकिन जो सर्विस है वी कैन नॉट सेल इट. अगर आप मैन्युफैक्चर में देखें तो जो होती है आपकी प्रोडक्शन ऑलवेज प्रिसीड्स कंजम्पशन. ठीक है, आपकी जब तक प्रोडक्शन नहीं होगी आपकी कंजम्पशन नहीं हो सकती. बट इन टर्म्स ऑफ सर्विस व्हाट हैपेंस कि आपकी प्रोडक्शन और कंजम्पशन दोनों साइमल्टेनियसली हो रही होती हैं. ठीक है, उसके बाद द प्रोडक्ट कैन बी ट्रांसपोर्टेड. प्रोडक्ट को हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, बट सर्विसेज कैन नॉट बी ट्रांसपोर्टेड. देन द सेलर प्रोड्यूसेस. और यहाँ पे क्या होती है आपकी को प्रोडक्शन भी हो रही होती है कि जी आपका जो बायर होता है सर्विस, जब अगर हम सर्विस मॉडल ले रहे हैं तो ही इज ऑल्सो प्लेइंग सम पार्ट इनटू इट. ठीक है, नाउ कंपैरिजन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. अगर आप देखें ऑन द टॉप इट्स अ हार्ड कोर मैन्युफैक्चरिंग जॉब. अब वो ऑटोमोबाइल्स की है. देन यू मूव्स टू इंस्टॉल्ड कारपेटिंग, देन फास्ट फूड रेस्टोरेंट, देन और जैसे जैसे आप नीचे आते जा रहे हैं लास्ट आपका आ जाता है कंसल्टिंग सर्विस. दोनों एक्सट्रीम्स हैं. कंसल्टिंग सर्विस इज अ प्योर सर्विस, कोई प्रोडक्ट एज सच आपको नहीं मिल रहा, इट्स ऑल इंटैंजिबल. और ऑटोमोबाइल इज ऑल टैंजिबल, आपको गाड़ियाँ मिलेंगी, आपको मोटर बाइक्स मिल रही होती हैं. देन आपके कुछ बंडल्स बने होते हैं. ठीक है, सर्विस हम इसको कहते हैं सर्विस प्रोडक्ट बंडल्स. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बंडल्स. नंबर 1 कि जी एक तो आपकी होती है एक्सप्लिसिट सर्विस. एक्सप्लिसिट सर्विस क्या होती है? दैट इज योर टैंजिबल सर्विस, व्हाट द सेलर डज फॉर यू. ठीक है, ठीक है, सेलर को आपने ये चीजें बताई, उसने ये वाली आपको टैंजिबल सर्विस दी. आप गए, आपने कहा जी मुझे आई वांट टू हैव अ बैंक अकाउंट, तो आपको सर्विस मिली, दैट इज अ टैंजिबल सर्विस. ठीक है. देन कम्स साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स, इम्प्लिसिट सर्विस. जब आपको सर्विस मिली, हाउ यू फील अबाउट इट, दैट इज एन implicit service. I go to the customer officer in the bank and I asked him कि जी मुझे बैंक अकाउंट खोलना है, and he talks very nicely, he presents you a cup of tea and everything. Tangible service थी कि जी आपने अपना बैंक अकाउंट खोलना था. लेकिन जो intangible is that you felt good about it, you felt कि भी हाँ यार it's a very nice bank, they are very good people, so that is it. Then comes your साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स के बाद उसके बाद आपके आ जाते हैं फिजिकल गुड्स. फिजिकल गुड्स में क्या होता है? इट्स फैसिलिटेटिंग गुड्स एंड फैसिलिटीज के जो आपके टैंजिबल जो आपका मॉडल होता है, यानी जहाँ पे आप गुड्स को आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं. वैसे अगर आपने होंडा कार बनाई है तो उसको भी तो आपने सेल आउट करना ना, वहाँ पे भी तो आपका एक सर्विस मॉडल चाहिए. तो जो आपकी ये चीज़ होती है दैट इज बेसिकली योर फिजिकल गुड्स. नाउ प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज वर्सेस गुड्स. अब वहाँ पे सर्विसेज क्या होती हैं? प्रोडक्ट में यूजुअली आपकी होमोजेनिटी आ जाती है कि एक प्रोडक्ट है, आईफोन है, कहीं से भी खरीद लें, दैट रिमेन्स एन आईफोन. बट अगर आप सर्विसेज को देखें, सर्विसेज आर हेट्रोजीनियस. सर्विसेज डिफरेंट किस्म की होती हैं. देन कस्टमर्स सर्व्ड एज फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व. कस्टमर्स को हम किस तरह करते हैं? प्रोडक्शन में ऐसा नहीं होता, जब टैंजिबल गुड होता है कोई भी आके ले ले. बट इन टर्म्स ऑफ सर्विसेज हम क्या कहते हैं? कस्टमर्स को फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बेस पे हम करते हैं. देन लेबर इज शेड्यूल्ड बट मे बी आइडल. आई एम सिटिंग एट सम पब्लिक रिलेशन ऑफिसर और आई एम सिटिंग एट द म्यूजियम. मैं वहाँ पे गेट पे बैठा हुआ हूँ, सिंस मॉर्निंग कोई भी कस्टमर नहीं आया. हाँ, मेरे लेबर आवर्स हुए मैं स्केड्यूल, बट आई मे बी सिटिंग आइडल बिकॉज I have no one to cater around. Then comes location often near customers. जो मैन्युफैक्चरिंग की अगर आप देखें तो हमारी जो फैक्ट्रीज होती हैं दूर होती हैं, शहरों से दूर होती हैं, बिकॉज दे आर प्रोड्यूसिंग इन बिग अमाउंट्स. पोल्यूशन होती है, वो करते हैं सारा कुछ तो फैक्ट्री एरियाज में होते हैं. बट जो सर्विसेज होती हैं, सर्विसेज आर यूजुअली लोकेटेड नियर द कस्टमर, सो दैट उस कस्टमर के पास एक्सेसिबल हो. देन
अब अगर हम इन चीज़ों को देखें तो व्हाट वी कैन से इज कि जो आपका सर्विस की प्रोडक्शन है टेंड्स टू बी मोर एफिशिएंट दैन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स. दे आर मोर एफिशिएंट. आप जल्दी कर सकते हैं. यू कैन एक्चुअली डिलीवर. यू कैन, इट्स मोर ईजियर, इट्स मोर कन्वीनियंट, इट्स, यू कैन टेलर इट अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द कस्टमर. ठीक है. देन कम्स हाउ वुड यू मेजर एफिशिएंसी और इनएफिशिएंसी इन सर्विसेज. एज अब मैंने ये एक पॉइंट दिखाया था कि जी, एक पॉइंट भी मैंने आपको बताया था, देयर इज वन इशू कि जी आप अपने सर्विस मॉडल्स को किस तरीके से असेस करेंगे या उसकी क्वालिटी को किस तरीके से असेस करेंगे. बट दैट इज़ डिफिकल्ट. बट यहाँ पे हम लेट्स ट्राई हाउ वी कैन एक्चुअली मेजर द एफिशिएंसी और इनएफिशिएंसी. अब उसके अंदर क्या आ जाता है आपका, नंबर 1 आपका आता है कस्टमर कॉन्टैक्ट मॉडल. कस्टमर कॉन्टैक्ट मॉडल क्या कहता है, potential inefficiency in services is the function of amount of customer contact. ठीक है. that is one equation कि potential inefficiency क्यों आएगी services के अंदर, it is basically the function of the customer contact. then customer contact को में हम क्या डिफाइन करते हैं, contact को कैसे हम डिफाइन करते हैं. contact is basically the interaction between your service provider and your customer. इन दोनों के दरमियान जो इंटरेक्शन होता है इसको हम क्या कहते हैं, contact. अब वाई सो, नंबर 1 कि जी आपका जो वेरिएबिलिटी होती है उससे आपका वेरिएशन कहाँ पे आ रही होती है. आपका जो कस्टमर होता है दैट डिटरमाइन्स द टाइम. मैंने एक, मुझे काम है एंड आई जस्ट स्पेंड लाइक 1 मिनट एंड आई गेट व्हाट आई वांटेड. आई एम अ सैटिस्फाइड कस्टमर. एक और मौसूफ है, उनको भी वही काम है लेकिन ही टेक्स टू मच टाइम. ठीक है. इन एक्सप्लेनिंग, इन गिविंग ऑर्डर, इन ऑल दैट. सो आपका क्या हो गया, मॉडल डिफरेंट हो जाता है. देन कस्टमर डिटर्मिन्स द ऑर्डर ऑफ सर्विस. देन कस्टमर इन्फ्लुएंसेस व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग द सर्विस. इफ द कस्टमर इज नाइस, आप भी अच्छे होंगे. कस्टमर इज बैड, फिर आपको रिस्पॉन्ड भी डिफरेंट तरीके से करना पड़ता है. ठीक है. सो दैट इज बेसिकली योर कस्टमर कॉन्टैक्ट मॉडल विच मेजर्स योर एफिशिएंसी और इनएफिशिएंसी इन अ सर्विस मॉडल. अब क्या होता है कि जी आपके कस्टमर एक सर्विस मैट्रिक्स है. अब सर्विस मैट्रिक्स क्या है, अगर आप हॉरिजॉन्टली देखें तो हॉरिजॉन्टली क्या लिखा हुआ है, कस्टमर वांट्स एंड नीड्स इन द सर्विस पैकेज. और आप अगर वर्टिकल देखें तो वर्टिकल में क्या ऑपरेशन सर्विस सिस्टम या आपका प्रोसेस डिजाइन क्या है. ठीक है. नाउ उसके अंदर 3 ब्लॉक्स हैं इन योर कस्टमर वांट्स एंड नीड्स. इसमें वो क्या कहता है, दैट हाईली कस्टमाइज्ड विद यूनिक प्रोसेस सीक्वेंस. Number 2, standardized with options using moderately repeated sequence. And number 3, standardized with highly repeatable processes and sequence. अब अगर आप इसको vertical देखें तो many processes, pathways, jumble flows, complex work with many exceptions. यहाँ पे moderate होता है और लास्ट में आपका नंबर बिल्कुल क्या हो जाता है, लिमिटेड हो जाता है. लेट्स सी नंबर 1. और ये फर्स्ट है जी आपका कस्टमर राउटेड कि जैसा कस्टमर चाह रहा है आप वैसा उसको चेंज करते हो. देन जो पहला एग्जांपल हो सकता है कि दैट इज कंप्लीटली कस्टमर राउटेड, दैट कैन बी योर पर्सनल ट्रेनर, दैट कैन बी स्टेट प्लानिंग. अब अगर आप इसको कंप्लीट स्टैंडर्डाइज किस्म की सर्विस है, दैट इज योर ATM. ठीक है. कोई भी चला जाए वो ये नहीं कहता कि जी सॉरी आप टाइम ज़्यादा ले रहे हैं, आप कम ले रहे हैं. आपकी स्टैंडर्ड सर्विसेज होती हैं, स्टैंडर्ड आपका टाइम लगता है एंड यू गेट आउट एंड यू गेट द सर्विस आउट ऑफ इट. सो दैट इज योर बेसिकली योर स्टैंडर्डाइज्ड सर्विस. और ये आपके थर्ड में आएगा स्टैंडर्डाइज्ड विद हाईली रिपीटेबल प्रोसेस सीक्वेंस. कोई भी चला जाए, कार्ड डाला, पंच किया, कोड, यू गेट द मनी एंड यू गेट आउट. ठीक है. अब जो थर्ड आ जाता है कि स्टैंडर्डाइज्ड विद ऑप्शंस. इसमें क्या होता है कि आपका स्टॉक ब्रोकरेज या आपकी मेडिकल प्रैक्टिस के जो लोग होते हैं वो इस किस्म का आपका कर रहे हैं, विच इज़ नॉट स्टैंडर्डाइज, विच इज़ नॉट कम्प्लीटली कस्टमाइज. उसके दरमियान की जो मिड वैल्यू दैट इज बेसिकली और दिस को राउटेड. ठीक है. सो हमारे इस मैट्रिक्स के मुताबिक हमारे पास 3 किस्म के वो आ जाते हैं, मॉडल्स आ जाते हैं. नंबर 1 इज योर कस्टमर राउटेड, नंबर 2 इज योर को राउटेड एंड नंबर 3 इज योर प्रोवाइडर राउटेड. कि जी जैसा उसने ATM के अंदर प्रोग्रामिंग किया बिल्कुल आपको वैसी सर्विस मिलेगी एंड दैट इज अ स्टैंडर्डाइज्ड सर्विस. ये नहीं कि अमीर आ जाएगा, गरीब आ जाए. अगर आप करोला से उतरे हैं तो आपको ATM कॉफ़ी पिलाएगी, अगर आप साइकिल पे गए हैं तो ATM आपको कुछ भी नहीं पिलाएगी. नो, दैट इज नॉट कस्टमाइज्ड, नॉट कस्टमर राउटेड, दैट इज अ प्रोवाइडर राउटेड. ठीक है. नाउ सर्विस ऑपरेशंस.
नंबर 2, अब इसमें हम क्या करते हैं, सर्विस का आपका डिज़ाइन जब हम बना रहे हैं, दिस इज़ बेसिकली द प्रीएम्बल ऑफ स्ट्रैटेजीज इन द सर्विस सेक्टर। अब क्या होता है, इसके अंदर जो बड़ा मेजर रोल है, दैट इज़ योर टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी हैज़ चेंज्ड एवरीथिंग, टेक्नोलॉजी हैज़ मूव्ड थिंग्स एट अ स्पीड ऑफ लाइट। नाउ व्हाट दिस इज कि जी प्रोडक्शन लाइन अप्रोच टू सर्विस क्या है कि जी सर्विसेज शुड बी स्टैंडर्डाइज्ड। जो लोग कहते हैं कि जी सर्विसेज को क्या होना चाहिए, स्टैंडर्डाइज्ड होना चाहिए एंड डिलीवर्ड इन एन एफिशिएंट मैनर। मैकडॉनल्ड्स में आप चले जाएं, इट्स अ स्टैंडर्ड सर्विस, you go, they smile, you order the food, they give you the food, you pay the cash and you are out। ठीक है, that's the standardized service। तो वो ये क्या कहते हैं कि the services needs to be standardized and delivered in an efficient manner। ठीक है, then सर्विस का आपने मॉडल ऐसा बनाया हो which should minimize the mistakes। क्योंकि एक ये भी है ना, अभी पिछले वाली स्लाइड में हम पढ़ रहे थे कि जी आपका जितना कस्टमर के साथ लिंकेज होता है, बट इफ द कस्टमर लिंकेज इज मोर, तो फिर क्या हो जाएगा, आपकी मिस्टेक्स भी ज़्यादा होती हैं। इसी वजह से लोग प्रेफर करते हैं कि जी आप इसको स्टैंडर्डाइज कर दें। ठीक है, एज मच ऑटोमेशन इज पॉसिबल। एंड देन service is provider routed with low customization। This is the role of technology in सर्विस डिज़ाइन। यू माइट हैव कॉल्ड द बैंक्स, यू माइट हैव कॉल्ड, यहाँ पे तो हमारे कॉल सेंटर्स हैं ना, लेकिन अगर आप यूएस में या बाहर अगर कॉल करें तो वहाँ पे आपको ऑटोमेटेड मशीन्स ऑर्डर करती हैं। हाँ, पीटीसीएल को यू कॉल ईवो and unless you don't want to talk to the customer relation officer, otherwise you are talking to the machine and she is giving you all kind of menus and you are selecting it। Same with the banks, you are actually calling them and the computer just generates। So आपने क्या किया हुआ, standardized responses रखे हुए हैं। What you have done is you have actually made technology as a वो जिसे कहते हैं ना, as a medium कि जी आपकी सर्विस, standardized सर्विस आपके कस्टमर तक पहुंच जाए। So that is basically provider routed। Now comes technology in the service design। Technology in the service design second view क्या है कि जी उसके अंदर हमने बात की कि जी your टेक्नोलॉजी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इसके अंदर हम क्या बात करते हैं कि एम्प्लॉयज़ जो हैं, ये जो लोग हैं, दे आर एक्चुअली द सेंटर ऑफ एनी सर्विस डिलीवरी। अब किस तरह है, लेट्स सी दैट। नंबर 1, इट सेज दैट टेक्नोलॉजी शुड सपोर्ट, डू नॉट रिप्लेस वर्कर्स। अब इसका बड़ा एक अजीब सा है कि जी यू कॉल एनी हेल्पलाइन एंड वहाँ पे आपको खातून टेक्नोलॉजी वाली बोल रही है एंड इट्स एन ऑटोमेटेड मशीन एंड यू आर गिविंग योर क्वेरी एंड शी इज़ अनएबल टू अंडरस्टैंड। लेकिन अगर कोई ह्यूमन बीइंग होता, ह्यूमन बीइंग मीन कि अगर कोई एम्प्लॉय होता, ही वुड हैव ईजली अंडरस्टूड योर क्वेरी। समटाइम्स आपको जब कॉल्स आ रही होती हैं कि जी इसके ऊपर आप when you are actually receiving calls, then if you are getting an automated call, then you don't get it may waste time। So अगर आपको calls automated नहीं आती, if it's from a employee or from a human being, so what happens कि जी आपको ज़्यादा जल्दी समझ आ जाता है। So what Nigel wants to point out is कि जी technology should support, but it should not be replacing the workers। Workers are very important। It gives the personal touch in an organization। उसके बाद सेकंड एक नोशन है कि भी ट्रेनिंग हम किन को दें। You have to train your managers in a way कि जी they are actually the reflection of the organization। Now most of the people would be spending so much money, ठीक है ना, so much money in the technology, they will buy everything, but वो जो है आपका जो एम्प्लॉय है उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग पे, उसका जो कस्टमर कॉन्टैक्ट मॉडल है या उसके जो कॉन्टैक्ट है अपने पीएस के साथ या अपने एम्प्लॉयज़ के साथ या अपने कस्टमर्स के साथ, उस पर हम फोकस नहीं करते। दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट बिकॉज वो कहते हैं ना कि जी आप अपना जो सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं वो अपने कस्टमर को प्लीज़ करने के लिए करते हैं, और अगर कस्टमर आपका अनसेटिस्फाइड है, फिर आपका चाहे कितना ही अच्छा प्रोडक्ट है, कितना ही है, सो दैट इज़ अगेन गॉन इन द डस्ट। अब वाई these trainers, why these workers need to be trained। दूसरा कॉन्सेप्ट ये भी आपने देखा होगा कि हम जब मैनेजमेंट में ट्रेनिंग्स करवा रहे होते हैं तो यूजली हम टॉप मैनेजमेंट या मिडिल मैनेजमेंट की ट्रेनिंग पे जाते हैं। ज़्यादा टॉप मैनेजमेंट ही जा रही होती है या मिडिल मैनेजमेंट, क्योंकि उनको आपने ग्रूम करना है।
लेकिन ये जो आपके फ्रंट लाइन जो मैनेजर्स होते हैं, जिनका जो बिल्कुल इनिशियल बेस्ट जो द मोमेंट यू एंटर द ऑर्गेनाइजेशन आपने उनके साथ इंटरेक्शन होता है, हम उनकी ट्रेनिंग नहीं करवाते इवन दो दे आर द फेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। आई ऑलवेज से कि जी इफ़ यू आर नॉट taking care of your frontline workforce, we can actually have a very bad image about the organization. Now, in order to do that, what we are doing is that आपने अपने frontline managers को production के हर process के साथ आपने उनको inform करना होता है, and they are need to be the most well informed employees of the organization. क्योंकि employee जब कोई customer आता है first पे, ठीक है ना, when the customer comes, the first thing he is doing is that he's interacting with that frontline manager, and if the frontline manager is not good, his service delivery is not very well, then it's not going to work out. Then you lose it, then you start losing your customers. I'll give you example for Lams कि जब ये नया बना तो वहाँ पे उन्होंने क्या किया कि जी अपना जो frontline managers थे उनको उन्होंने highly train किया कि जो भी आपसे आके मिलता है just be very good to them, be very nice to them, क्योंकि अगर उनका impression ख़राब हो गया तो it will be a word of mouth, it will be a spread कि जी the university is not good, they are very rude to the people who go and ask information about it. So उन्होंने कभी इस तरीके से नहीं किया. So that is important. Then आपके जो फ्रंट लाइन मैनेजर्स होते हैं एज आई सेड कि भी उनके पास सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट नॉलेज होनी चाहिए, उनको ख़ास ट्रेनिंग पे भेजना चाहिए. दे नीड टू हैव अ प्लेजेंट पर्सनैलिटी कि कस्टमर है एंड ही शुड फील हैप्पी अबाउट इट. देन लिंक कंपनसेशन टू परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एट ऑल लेवल्स. आपने क्या करना है, जो आपकी कंपनसेशन है जो आपके परफॉर्मेंस लेवल्स के साथ है उसको हमने लिंक करना है. अगर मैं ये काम करूँगा तो मुझे इतना पैसे मिलेंगे, अगर मैं ये काम करूँगा तो मुझे इतने पैसे मिलेंगे, या अगर मैं ये करूँगा तो मुझे प्रमोशन मिल जाएगी. सो आपने उसके साथ क्या करना है, कोई पर्क्स एंड प्रिविलेजेस अटैच करना है. देयर नीड्स टू बी सम वो जैसे कहते हैं compensation, there needs to be some appreciation at all level. As I always tell you, McDonald's के ऊपर जिस तरह हमने मनाया वो employee of the month. अब employee of the month is a kind of compensation. It's basically a recognition given to the employee for his services in the organization. Next, एक और अभी I just missed it, that value investment in employees as much as in technology. वही वाली बात जो I was telling you that we tend to spend so much money in investment in technology. We tend to get all new kinds of machinery, but machinery is just जिसे कहते हैं ना, it is just helping you. It cannot substitute the human labor. अभी भी अगर आप बैंक्स में कॉल करते हैं तो वो टेक्नोलॉजी मैसेज है, वो ऑटोमेटेड मैसेज आपको मिलते हैं, बट व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर बेसिकली ऑटोमेटेड मैसेज में वो कहते हैं ना, इफ यू वांट टू टॉक टू कस्टमर रिलेशन ऑफिसर, टॉक टू देम. And जो मेरा एनालिसिस है कि majority people would say कि I would like to talk to the customer relation officer because it's not helping out in a sense कि जो आप communicate कर रहे हैं via mail या via complaint या via online, it is not going to be that good. So it's better to have a one-to-one face-to-face contact in our model. So what companies do, they invest so much in technology but they do not invest in employees. So they need to invest in employees. और जो कि आजकल का dilemma आ रहा है that people are leaving organizations, that may be one of the ways कि जी अगर if people are not satisfied with your organization, if people are not happy, they would have left you 1 year ago. लेकिन if people are happy, ठीक है, if people are engaged in terms of your service, they like it, तो फिर they will never leave you. They will become your pure long-term customers. And believe me, it's just a matter of your language. It's just a matter of your communication. If your communication is good, if you know कि जी मेरा customer क्या चाह रहा है, और I'll tell you very simple gesture. हम ट्रेनिंग करवाते हैं तो I would go to an organization, XYZ organization, and I was conducting some training sessions, and what they did was whenever my car would enter the compound, the guard over there, he would just salute and he would offer salam in a very smiley manner and all that. And I was just the first time I was going to the organization, but believe me, just with the smile of the guard and the attitude, I literally worked with that organization for 6 months. Actually, the first assignment was for just 30 days.
बट आपका जो होता है ना फेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, आपका जो गार्ड होता है, तो आपको उसी तरह पता चल जाता है कि भाई इस ऑर्गेनाइजेशन को किसी बहुत अच्छे बंदे ने ट्रेन किया हुआ है इन टर्म्स ऑफ कल्चर, जो कि सिर्फ ये नहीं कहता कि technology is important, invest as much as you can in technology, but you should invest in people, you should value your employee, you should appreciate them, you should recognize their efforts. So that is basically what we are talking about कि जी आपके ऐसे models हो जहाँ पे हम क्या करें, customer को ऐसी service दें that he keeps on coming back. Now, customer contact design अभी हमने जो पढ़ा था, one is your high contact services and other one is your low contact services. High contact services कौन सी होती हैं? आपकी front line वाली, या जो face to face होता है. इसमें क्या हो सकता है कि जी आपका consumer से direct contact होता है और consumer के पास sometimes ज़्यादा control होता है in terms of controlling, in terms of manipulating or exploiting the process. Then comes low contact model. Low contact model में क्या होता है? Low contact को वैसे कहते हैं, दूसरा वाला है front room, इनको क्या कहते हैं? Service rooms कहते हैं, back rooms कहते हैं. And then you are saying कि out of sight of customer, you are not sitting in front of the customer. They just come, drop something and that's it. Number two is provider has more control on the process. पिछले वाले में जो हाई कॉन्टैक्ट है उसके अंदर आपके जो कस्टमर है उसके पास ज़्यादा कंट्रोल है, लेकिन इस वाले में आपके प्रोवाइडर के पास ज़्यादा कंट्रोल है. सो वन मूव्स एज मच एक्टिविटी एज पॉसिबल टू द बैक रूम. वाई? अब वो क्या कहते हैं कि जी आप क्यों, व्हेन वी हैव ऑलरेडी गिवन द रेशियोज वी हैव शोड इट कि जी आपका जो बैक रूम सर्विस है इट इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज योर फ्रंट रूम, लेकिन बैक रूम सर्विस की जो क्वालिटी है कि जी आपका जो प्रोवाइडर होता है उसका ज़्यादा कंट्रोल होता है. जो आपका फ्रंट रूम है उसके अंदर आपके क्लाइंट्स के पास या आपके कस्टमर्स के पास ज़्यादा वो है प्रिविलेज दैट दे कैन एक्चुअली सी द प्रोडक्ट, और जो आपका जो प्रोवाइडर है वो उस सर्विस के जाहिर नहीं करेगा. लेकिन गोल क्या है हमारा इसके अंदर? Move as much activity as possible to the back room. Why? जितनी भी एक्टिविटी आपकी है वो सारी बैक रूम में हो रही है. लेकिन ऑपरेशंस में मैंने देखा है कि भी जहाँ पे हम ये कहते हैं ना कि जी ट्रांसपेरेंसी का एरा आ गया है, अकाउंटेबिलिटी का एरा आ गया है. व्हाट वी हैव डन इज कि वी फील कि जितने भी हम बैक हैंड ऑपरेशंस करते थे ना या बिहाइंड द कर्टन करते थे, हम अब उस ऑपरेशन के अंदर विजिबिलिटी लेके आ रहे हैं. हम उसके अंदर अब लेके आ रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी लेके आ रहे हैं. वाई वी आर ब्रिंगिंग इट? क्योंकि पीपल आर नाउ मोर अवेयर एज कम्पेयर टू बी द प्रीवियस डेज. अगर अभी आज आप कोई चीज़ आप एडवर्टाइज करते हैं या कोई आप वेंचर करने लगते हैं, नो मैटर हाउ मच यू आर गोइंग टू कीप इट वो जिसे कहते हैं ना सेफ, या कि वो नो मैटर हाउ मच यू गोइंग टू कीप इट एज अ सीक्रेट, इट कैन नॉट, बिकॉज आपका जो मीडिया है, आपकी जो सर्विस जो इस किस्म वॉच डॉग्स हैं वो ज़्यादा अब एक्टिव हो चुके हैं. नाउ द थिंग इज दैट जो कस्टमर जो है ना लो कॉन्टैक्ट मॉडल या हाई कॉन्टैक्ट मॉडल, दैट अगेन आई एम श्योर दैट पीपल आर गोइंग टू क्वेश्चन कि फिर हम कौन सा वाला मॉडल लगाएं. Should we focus on the operations or should we focus on the customers? Should we focus on the backroom services? So that actually becomes a $1 million question. अब इसमें क्या करना होता है कि if you are saying कि जी किसी एक को बंद करना है ऑपरेशन को, then I would say कि जी if your operations are going superb, ठीक है, and they have the visibility, ठीक है. विजिबिलिटी का भी मैं आपको बताता था कि टाइम्स आर चेंजिंग. अगर आप होटल्स में जाते हो तो उन्होंने ग्लास रूम्स अब रखे हुए हैं सो दैट यू कैन सी व्हाट इज हैपनिंग. अकाउंटेबिलिटी का जो एरा आ गया है, ठीक है. अगर आप देयर इज अ वेरी फेमस फैक्ट्री इन वाशिंगटन डीसी, जॉर्ज टाउन के अंदर है, और जॉर्ज टाउन के अंदर दैट इज नोन एज अ कप केक फैक्ट्री. अब कप केक फैक्ट्री बेसिकली उन्होंने ग्लास लिया हुआ है एंड दे शो कि कप केक कहाँ से आया, कहाँ से बना, क्या हुआ है. एंड देयर इज अनदर वो कॉन्सेप्ट दैट इज नोन एज अ कप केक एटीएम कि आप उसमें पंच करते हो और वहाँ से आपका कप केक नजर आता है, और जैसे आपका कप केक बन रहा होता है वो सारा आपकी उस एटीएम स्क्रीन के ऊपर आपको विजिबली नजर आ रहा होता है.
Why more and more backhand operations? क्योंकि इसमें backhand operations is more of a provider का उसमें ज़्यादा कंट्रोल होता है. अगर आप हाई कॉन्टैक्ट रखते हैं, फ्रंट रूप करते हैं, तो उसमें आपके कस्टमर का ज़्यादा कंट्रोल होता है. तो व्हाट वी हैव सीन कि फर्म्स क्या करती हैं, वो ज़्यादा ये जो है बैक रूम ऑपरेशंस यूज़ कर रही होती हैं. देन ये है एक लग्जरी होटल, लेट्स सपोज सरीना है, पर्ल कॉन्टिनेंटल है, ये उसका क्या है सर्विस ब्लूप्रिंट ऑफ लग्जरी होटल. ठीक है, यहाँ पे अब आप फिजिकल एविडेंस क्या है कि इट्स गुड, वेरी गुड होटल, सर्विस इज गुड, दैट इज होटल, एक्सटीरियर पार्किंग, कार्ट फॉर बैग्स, यूनिफॉर्म, लॉबी, वेटिंग एरिया, कस्टमर डेस्क, एलिवेटर, हॉलवेज, रूम हैंडलिंग, प्लेसमेंट इन द रूम, बाथ, टेलीविजन, बेड, मेन्यू, वेट, अपीयरेंस, फूड एंड फूड एक्यूरेट बिल. ठीक है, ये वाला आपका सारी डायमेंशंस आ गई, आपका फिजिकल एविडेंस आ गया. अब हम कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कस्टमर के एक्शन. कस्टमर एंटर हुआ, ठीक है, देन he gives bags to the ball person, then he checks in, then he goes to the room, receive bags, shower cap, penny, took a shower, then call room service, received food, eat and check out and leave. ठीक है, that is basically your customer के actions है. अगर आप दूसरी साइड पर देख रहे हैं कि जी जो हम फॉरवर्ड वाले में कर रहे थे कि जी आपकी जो सर्विस मॉडल है वो क्या होना चाहिए, इट शुड बी विजिबल, ये आपके सामने हो रहा होता है. वो सामने कौन सा हो रहा होता है, ग्रीट एंड टेक द बैग्स. नाउ दैट इज हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ यू. देन प्रोसेस रजिस्ट्रेशन, जब रिसेप्शन पे जाते हैं आपका जी हमारी रजिस्ट्रेशन करते हैं. उसके बाद देन डिलीवर बैग्स, आप फिर कमरे में जाके वो बैग्स रख आते हैं. लेकिन अगर आप किसी रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं, सो देन द मॉडल वुड वर्क लाइक आपने सर्विस डिलीवरी, फूड की डिलीवरी की और आपको ये पता चला कि प्रोसेस चेकआउट क्या है. अब क्या आ जाता है लाइन ऑफ विजिबिलिटी. बैक स्टेज कॉन्टैक्ट पर्सन, वो कोई भी हो सकता है. ठीक है, नाउ जब यहाँ से ग्रीट एंड टेक द बैग्स वाले से आप देखेंगे जी आपके जब उसने बैग्स लिए तो वो आपको सीधा कहाँ पे कर देता है, डिलीवर बैक कर देता है. जब आपने रूम में चेक इन किया है और अगर आप रूम से चेकआउट करते हो तो आपको पार्किंग लॉट पे वो कर देता है. ठीक है, उसके बाद रूम सर्विस के अंदर आपने क्या किया, यू टेक फूड एंड ऑर्डर, टेक द फूड एंड ऑर्डर. और इसका क्या हुआ कि जी यू हैव टेकन द फूड एंड देन यू ऑर्डर इट, ये आपका क्या है मेन्यू का. उसके बाद आपका क्या आ जाता है प्रोसेस, आपने वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना शुरू कर दी. यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपका शुरू होता है. उसके बाद देन सपोर्ट सर्विसेज में खाना आपका बन रहा है, रजिस्ट्रेशन सिस्टम है. तो ये सारे जो डिफरेंट लेवल ऑफ सर्विस हैं एक दूसरे के साथ क्या हुए हैं, नेटवर्क हुए हैं, एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं. उसके बाद कस्टमर कॉन्टैक्ट वेरिएबिलिटी. There are different kinds of variability by customers in your service delivery. Number one, arrival. Arrival क्या होता है, when they arrive to consumer service. सबसे पहले हम जाएंगे और हम कहते हैं जी हमें ये वाली particular service चाहिए, तो वो जो हम जाएंगे that is basically known as your arrival. उसके बाद आप क्या करते हो, request करते हो, what they ask for in the bundle. They might SMS you, they might call you, they might email you and they will ask you कि excuse me madam, excuse me sir, आपने इसमें लिखा क्या हुआ है. Then what you do is that you will request. अब request क्या होगा, what they ask for in the bundle. कि जी अब why that bundle is so important, why they are actually looking for it, because it is actually वो जिसे कहते हैं packed and has been requested कि जी when they ask for the bundle कि जी मुझे इस particular service ये वाली हमें चाहिए. ठीक है, Then comes capability of customers to participate. आज हमने अपनी जब सर्विस की हम डेफिनेशन या हम सर्विस का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, भी बस यही कि जी आपका जो मॉडल है, ठीक है ना, आपका जो कस्टमर कॉन्टैक्ट मॉडल है उसके अंदर प्रॉब्लम ये होती है दैट के प्रॉब्लम तो नहीं आप कहेंगे, उसका फीचर ये है कि आपकी सर्विस और आपकी जो प्रोडक्शन और कंजम्पशन क्या हो रही थी, साइमल्टेनियसली हो रही थी एंड योर कस्टमर कैन ईजिली पार्टिसिपेट इन दैट प्रोसेस. सो जब कस्टमर उसके अंदर पार्टिसिपेट करे तो हम इसको क्या कह देते हैं, दैट इज बेसिकली कैपेबिलिटी, एबिलिटी ऑफ कस्टमर्स टू पार्टिसिपेट. उसके बाद लास्ट आपका क्या आ जाता है, दैट इज योर एफर्ट. कस्टमर कॉन्टैक्ट वेरिएबिलिटी के अंदर दैट इज योर एफर्ट. एफर्ट क्या है, विलिंगनेस ऑफ कस्टमर्स टू पार्टिसिपेट. अगर आपके कस्टमर्स को हमने विलिंगनेस नहीं दी, दे आर नॉट विलिंग, आप कुछ करना ही चाहते हो और मैंने आपको वहाँ पे रोक दिया कि सॉरी आई डोंट नीड योर वर्क, देन इट्स बैड.
So आप अपने कस्टमर्स को क्या करें, ग्रूम करें, हेल्प करें कि इफ दे वांट टू लर्न योर काइंड ऑफ work, if they want to participate in your service model, they can and they should. Then last, that is basically your subject preferences of customers and how this service to be carried out. अब customers ने किस तरीके से इस service को utilize करना है. अब क्या आती है, capacity management strategies. There are two major strategies. Number one, how can we manage the capacity, and number two, how can we manage the demand. Capacity is basically your supply and demand is basically your demand. Then comes, जब आप कैपेसिटी की बात करते हैं, हाउ वी कैन डू, जो पहला स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव था कि जी आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को कैसे अचीव करते हैं. नाउ दैट इज बेसिकली कि आपने क्या किया है, यू हैव योर पार्ट टाइम वर्कर्स. ठीक है, अगर आपको ज़्यादा डिमांड आ गई है या अगर आपने कैपेसिटी को मैनेज करना है, आप सुबह के टाइम भी काम करवा रहे हैं और शाम को आपने पार्ट टाइम वर्कर्स मंगवा लिए. इट मे बी द सेम थिंग कि जी आपने वो एक यूनिवर्सिटी खोली हुई है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, सुबह के टाइम वो यूनिवर्सिटी बन जाती है, एंड इन द इवनिंग यू हैव अ ट्यूशन सेंटर. अब ट्यूशन सेंटर प्रोफेसर्स नहीं आ रहे हैं, बल्कि आपने कुछ डिफरेंट पार्ट टाइम वर्कर्स हायर किए हुए हैं. लेकिन द एडवांटेज कि आप अपनी बिल्डिंग को दोनों टाइम पे यूज़ करें, मॉर्निंग में भी यूज़ करें और इवनिंग में भी यूज़ करें. देन कैपेसिटी अगर आपने मैनेज करना है तो यू कैन एक्चुअली शिफ्ट द स्केजुलिंग. ठीक है, स्केजुलिंग को शिफ्ट करने से आपको क्या होता है, यू कैन एक्चुअली गो टू द ऑप्टिमम लेवल ऑफ कैपेसिटी. उसके बाद को प्रोडक्शन करें. को प्रोडक्शन इज बेसिकली कि जी आपका जो कस्टमर है और आपका जो प्रोड्यूसर है वो दोनों क्या करें, साइमल्टेनियसली क्या करें, प्रोडक्शन और कंजप्शन के अंदर इन्वॉल्व हों. देन कम्स योर क्रॉस ट्रेड वर्कर्स. अगर आपने अपनी कैपेसिटी को मेंटेन करना है तो देयर आर वर्कर्स जिनको आप क्या कहते हैं कि जी आप एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में आप चले जाए. सिमिलरली इफ यू टॉक अबाउट नेस्ले, यू टॉक अबाउट टेट्रा पैक, यू टॉक अबाउट यूनिलीवर, जो आपकी पहली पोस्टिंग होती है दैट इज बेसिकली योर MTO प्रोग्राम. अब MTO प्रोग्राम में क्या हो रहा होता है दैट यू आर गिवन, you are handled towards finance, you are handled towards this finance में आप करते हो, marketing में करते हो, sales में करते हो, operations में करते हो. What they are actually doing is in these MTO programs is that your workers are highly trained. और ये नहीं आप एक वर्कर पे डिपेंड नहीं कर रहे होते और आपकी उसकी कैपेसिटी उसके पोटेंशियल को क्या कर रहे होते हैं, यूटिलाइज कर रहे होते हैं इन डिफरेंट डायमेंशंस. उसके बाद आपकी आ जाती हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज. यू आर यूजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजीज सो दैट इट एक्चुअली हेल्प्स इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग द कैपेसिटी ऑफ द वर्कर्स. उसके बाद आप अपनी फैक्ट्री को क्या कर रहे हैं, फोकस फैक्ट्री, रिड्यूस कॉम्प्लेक्सिटी. अपने प्रोसेसेस को, वही हम ऑपरेशंस की अगेन बात करेंगे कि इवन व्हेन वी आर डीलिंग विद द कैपेसिटी इश्यूज or even when we are increasing or decreasing the capacity, what you have to do is you should reduce the complexity, because जितना ज़्यादा आपका operations complex होता जाएगा उतना ज़्यादा आपको problem होगी. ठीक है, now just a recap, when we are managing the capacity we have the part-time workers. Number one, shift the scheduling, कि आप अपनी scheduling को आप अपने वो shift कर लेते हैं, morning भी कर ली, evening भी कर ली and everything. then आपने co-production start की. देन आपके ये जो क्रॉस ट्रेंड वर्कर्स होते हैं, फिर आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज आप यूज़ करते हैं, एंड देन यू शुड फोकस ऑन फैक्ट्री. एक साइड पे हमने डिमांड को, एक साइड पे हम अभी सप्लाई को मैनेज करते हैं. ऑन द अदर साइड हाउ टू मैनेज द डिमांड. अब डिमांड को मैनेज करने के लिए बहुत ईजी टूल है. व्हाट वी डू इज वी जस्ट फोरकास्ट. व्हाट इज फोरकास्ट? फोरकास्ट इज कलेक्शन ऑफ डेटा एंड मेक कलेक्शन ऑफ पास्ट डेटा एंड मेकिंग अजम्पशंस अबाउट द फ्यूचर. अब जब आप फ्यूचर की जब आप assumptions कर रहे होते हैं तो आप डिमांड को मैनेज कर रहे होते हैं. फॉर एग्जांपल अभी जब रमज़ान आएगा या तो आप क्या करते हैं, पेप्सी ने प्रोडक्शन उसकी उसी वक्त नहीं स्टार्ट करनी. पेप्सी या कोक ने उसकी प्रोडक्शन 6-7 महीने पहले उसकी फोरकास्ट कर ली हुई है कि भाई दिस काइंड ऑफ टेम्परेचर की प्रोजेक्शंस ये हैं, लोग इतने सारे लाहौर में होंगे या कराची में होंगे, इतने ज़्यादा ये पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जा रहा है, ये नए ट्रेंड्स आ रहे हैं. अगर हम ये वाली कैंपेन स्टार्ट कर देंगे कि जी शायद अफरीदी जाके आपके घरों में आके इफ्तारी करेगा तो मैं भी ज़्यादा कंजम्पशन हो जाए. सो ऑल दिस काइंड ऑफ जो हम ट्रेंड्स हैं इन सारों को हम इकट्ठे करके देन वी एक्चुअली मैनेज द डिमांड कि जी ओके दिस शुड बी माई ऑपरेशन टारगेट, दिस शुड बी द प्रोडक्शन टारगेट फॉर दिस पर्टिकुलर month or for this particular quarter. आप अपनी प्रोडक्शन के तो आप what we are doing is we are managing the demand by doing forecasting. Number two,
आप अपनी डिमांड को ज़्यादा या कम इस तरह कर सकते हैं बाय एडवर्टाइजिंग। जितना आप ज़्यादा एडवर्टाइज करेंगे द अजम्पशन इज़ कि आपकी डिमांड उतनी ज़्यादा होती जाएगी, क्योंकि जितनी ज़्यादा लोगों में अवेयरनेस आती है द मोर दे आर गियर्ड टूवर्ड्स योर सर्विस और टूवर्ड्स योर प्रोडक्ट। You might have heard the advertisement of services. I'm not talking about production at the moment, the manufacturing की नहीं मैं बात कर रहा, I'm just talking about the service वाला जो मॉडल है कि जी डिफरेंट डॉक्टर्स होते हैं, आपके ये जो एजेंट्स होते हैं जो आपको इमिग्रेशन आपको करवा रहे होते हैं, या आपकी जो फ़ोन सर्विसेज होती हैं, इंटरनेट की जो सर्विस है, ये सारी आपकी सर्विसेज आप देखेंगे दे आर ऑलवेज ऑन द रेडियो। आपको वो डिफरेंट वो मैसेजेस के साथ एडवर्टाइजिंग कर रहे होते हैं, जिंगल्स बना रहे होते हैं। एंड आई डोंट नो अबाउट इट, बट इफ़ यू हैव हर्ड द मॉडल ऑफ ये जो एडवर्टाइजिंग है, एडवर्टाइजिंग के अंदर एक होती है लुकिंग इनटू कि मेरा प्रोडक्ट कौन सा है। फॉर एग्जांपल इफ अगर आप ऑडी की एडवर्टाइजिंग करेंगे, आई एम श्योर ऑडी कभी रेडियो पे नहीं करेगा, क्योंकि इट्स अ हाई एंड प्रोडक्ट। यूनिवर्सिटीज़ ने अब अपना शुरू कर दिया हुआ रेडियो के ऊपर प्रोग्राम। आई वाज लिसनिंग टू लम्स, दे आर नाउ एक्चुअली एडवर्टाइजिंग ऑन द रेडियो। आई डोंट नो हु इज द एडवर्टाइजर, बट एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स नेवर वुड मेक अ प्रोमो एंड डू इट लाइक दैट। मैंने कभी वो जिस कहते हैं हार्वर्ड या बर्कले या स्टैनफोर्ड या अमेरिका में ऐसा कभी नहीं हुआ कि जी आप रेडियो पे आप एडमिशन्स की कर रहे हैं। But interesting part is that if you have ever traveled on the Grand Trunk Road और GT रोड पे अगर आप ट्रैवल करना, उस पे अगर आप ने नहीं कभी किया, I would say do it once in your lifetime. Start browsing on the radio, and over there you would listen to these advertisements. और वो advertisements ऐसी हैं कि either आपकी हंसी रुकेगी नहीं, या एक दफ़ा आप परेशान हो जाएंगे कि ये कौन से MBAs ने ऐसी एड्स बनाई हैं। प्रोडक्ट कुछ और होता है एंड सर्विस कुछ और बना रहे होते हैं, एंड इट्स आर जिसे कहते हैं ना फुल फन टाइम व्हेन यू आर लिसनिंग टू दोज एड्स। आई फ्रैंकली मैं तो सिर्फ एडवर्टाइजमेंट सुनता हूँ व्हेन आई एम देयर, बिकॉज यू जस्ट सी द क्रिएटिविटी एट इट्स पीक। एनीवे, फिर आपके रिजर्वेशन सिस्टम्स होते हैं। अगर आपने डिमांड को मैनेज करना है, फॉर एग्जांपल अभी कोई नई मूवीज़ आती हैं तो आपने डिमांड को देखना है, जी बहुत ज़्यादा डिमांड है, आप इजीली उसको मैनेज कर सकते हैं। आप कहते हैं जी अभी तो हमने उस डे पे टिकट्स नहीं सेल करेंगे, व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर एक्चुअली सेलिंग द टिकट्स ऑन 3 days बैक, ठीक है ना। हम एडवांस बुकिंग कर रहे हैं, तो जैसे ही आप एडवांस बुकिंग करते हैं तो आपको उसका आइडिया हो जाता है कि आपकी कितनी डिमांड है या उस प्रोडक्ट को कैसे आपने मैनेज करना है। फिर You do 2 more things, that is your yield management, और yield management के आप प्राइसिंग के साथ भी कर सकते हैं। प्राइस कम होगी तो आपकी क्वांटिटी डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, प्राइस ज़्यादा हो जाएगी तो आपकी डिमांड कम हो जाएगी। एंड देन यू डू द मार्केट सेगमेंटेशन। मार्केट सेगमेंटेशन के अंदर व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम डिवाइडिंग द मार्केट इनटू डिफरेंट सेगमेंट्स। सो दोज वर योर managing your capacity, that is you're managing your supply and managing your demand. अब कस्टमर की इंटरफेस स्ट्रैटेजी क्या है? Some people say कि जी customers, as we said, अभी हम जब मैं शुरू में आपको बताता था, सर्विस के अंदर we are actually talking about कि सर्विस को उसके पार्ट का मॉडल बना दें, ठीक है। When I'm saying कि उसको आप मॉडल बना दें, it means कि जी आपकी को प्रोडक्शन जब हो रही है, जब आपकी सर्विस दी जा रही है, उसमें आपका कस्टमर भी रोल प्ले कर रहा होता है। Some people say कि get the customer out of the process. They are very rigid about it. वो कहते हैं कस्टमर को इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है। some school of thought से कि जी get the customer involved into it, ठीक है। Two different। और लास्ट क्या है, अंडरस्टैंड दैट योर एम्प्लॉयज मेक द डिफरेंस, ठीक है। और तीसरा वो कहते हैं जी आपके जो एम्प्लॉयज है ना, दे एक्चुअली मेक द डिफरेंस। अब व्हाट आर द अप्रोचेस टू सर्विस डिजाइन? नंबर 1 is your production line, कि आपकी प्रोडक्शन लाइन कैसी है। Number 2, your customer is the co-producer. Put the customer back in the process. Number 3, your customer के साथ कितना मेरा contact है, either he is totally out of the model, either he is totally out of the model, or I am keeping some interaction. कि कस्टमर आता है, कस्टमर कहता है कि जी मेरा टेलीफोन ख़राब हो गया है, I have a phone set, it's not working. What he will do is that he will come, give the phone at the front reception, वो आपको रसीद दे देता है, that is it. अब पीछे आपका फ़ोन चला जाता है, ठीक हो रहा है, ख़राब हो रहा है, वो आपको कहीं 3 दिन बाद आ जाए। अब इसमें क्या हुआ है कि आपका कस्टमर क्या हुआ है, मॉडल से बाहर है।
his point is just, अगर ये भी नहीं आप कर सकते, आप कहते जी we don't require customers. For example, I'll give you an example. ये जब computers खराब हो जाते हैं जी, भी जो बड़ी organizations होती हैं, for example Dell है, HP है, Acer है, ये क्या करते हैं कि जी you don't need to come to us, or you don't need to even drop this computer at our service center. हम आपको क्या facilitate करते हैं, just send us your address. हम एक courier वाला बंदा भेजेंगे, वो आपको डब्बा दे जाएगा, an empty box, put your computer and your mail is totally covered. आपके जो मेल चार्जेस हैं, आप वो डब्बा दोबारा फिर से बंदा आएगा आपके घर से ले जाएगा, the computer will be fixed and it will be given back to you. This is how it works. ठीक है. अब कस्टमर का मॉडल में कितना है, सर्विस मॉडल में नॉट इवन अ सिंगल ही हैज पार्टिसिपेटेड, क्योंकि डब्बा भी खुद घर आ गया, आपने वो चीज़ उसको की. लेकिन अगर आप क्वालिटी ऑफ सर्विस देखें, कस्टमर फील्स वेरी रिलैक्स, ठीक है, आई डोंट हैव टू drive to that computer shop, I don't have to do anything, they will do everything and customer feels happy about it. So जो मेरा point था कि do not feel confused when I'm saying कि जी कस्टमर जब मॉडल से बिल्कुल बाहर होता है तो सर्विस आपको नहीं मिल सकती. सर्विस आपको तब भी मिलती है, बट इट्स जस्ट कि जी आप किस तरीके से कस्टमर को फैसिलिटेट कर रहे हैं. ऑन द अदर साइड इफ ये कस्टमर इन द मॉडल, वो फिर अभी हम आगे जाके देखते हैं कस्टमर का कॉन्टैक्ट कितना है, ज्यादा है या आपने कम रखा हुआ. उसके बाद देन इंफॉर्मेशन एम्पावरमेंट. जितनी ज्यादा आप इंफॉर्मेशन किसी को बताते हैं, उतना ज्यादा आपका जो कस्टमर होता है वो ज्यादा रिलैक्स्ड होता है, उतना ज्यादा ही इज मोर प्रोन टू मेकिंग डिसीजंस रादर देन स्टेइंग इन द ग्रे एरिया. अब आ जाता है कि सर्विस में हम क्वालिटी कैसे इंश्योर करते हैं. नंबर 1, सर्विस की क्वालिटी एट्रीब्यूट्स कौन से हैं? 3 एट्रीब्यूट्स हैं. नंबर 1, सर्च, एक्सपीरियंस एंड क्रेडेंस. सर्च में क्या करते हैं, एट्रीब्यूट्स कस्टमर्स कैन एवेल्युएट बिफोर परचेज. मैंने कहा कि जी एप्पल आईफोन, ठीक है, आई जस्ट नो एडवर्टीजमेंट देखी है, उसके बाद आई हैव सीन द रिव्यूज. अब मुझे क्या है, आई कैन एक्चुअली एवेल्युएट, आई एम एवेल्युएटिंग इट बिफोर आई हैव एक्चुअली मेड द परचेज. आई आस्क माई फ्रेंड्स कि हाउ इज द फोन एंड एवरीथिंग. देन सेम विद द डॉक्टर, कि जी एक डॉक्टर साहब का इश्तिहार चलता है डेली एंड आई स्टार्ट एवेल्युएटिंग इट. आई कैन एक्चुअली आस्क पीपल कि जी हाँ जी कैसा है डॉक्टर, आई हैव लिसनिंग अ लॉट अबाउट इट, और उसकी कोई सक्सेस स्टोरीज में देख लूँ, ठीक है. सो बिफोर आई गो टू द डॉक्टर आई हैव एक्चुअली एवेल्युएटेड इट, ठीक है. दैट इज बेसिकली कम्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ सर्च. उसके बाद आ जाता है आपका एक्सपीरियंस. एक्सपीरियंस में क्या होता है, दैट एट्रीब्यूट्स दैट कस्टमर्स कैन एवेल्युएट ओनली ड्यूरिंग कंजम्पशन. I have heard a lot about the food, but until unless I haven't eaten it, मैं सिर्फ लोगों को ट्रस्ट करके नहीं कर सकता कि जी एम्बियंस में भी बहुत अच्छा है सारा कुछ, लेकिन once I eat the food then I am actually experiencing it. So search के बाद क्या होता है, experience. During experience is basically that we are actually utilizing that service. I have heard a lot of things about that, about this particular doctor, about this particular professor at the university. लेकिन जब तक मैं उसकी क्लास में नहीं जाता मुझे नहीं पता चलेगा that how this person teaches. So that is basically your experience. Then comes your credence. Credence के अंदर क्या होता है कि कुछ ऐसे attributes होते हैं which are very difficult to evaluate even after consumption. आप कहते हैं कि जी I loved it, but some was कि जी I can't tell you, it was such an amazing experience, लेकिन मैं बता नहीं सकता, because that is credence, because you cannot, it is very difficult to evaluate. Then comes आपकी सर्विस क्वालिटी स्ट्रैटेजीज कौन सी होती हैं. सर्विस क्वालिटी स्ट्रैटेजीज में एक हमारा सर्विस वो गैप मॉडल है, वो मैं अभी आपको आगे करवाता हूँ. Then we talk about के design and implement formal service recovery model, के भी जब भी आपकी कोई चीज़ ख़राब हो जाती है, if something happens, तो आपका जो service recovery model है that needs to be very good. People needs to have confidence के भी अगर आपके ये प्रोडक्ट के अंदर if there is any loophole, any caveat, what can be done कि जी आप आराम से देंगे, it can be done. Why these big companies like Walmart, JC Penney, या ये क्यों सर्वाइव करते हैं इवन इन द वेस्ट कि जी आपने 1 महीने तक प्रोडक्ट यूज़ किया, ख़राब हो गया, यू जस्ट गो देयर एंड यू जस्ट गिव देम द प्रोडक्ट बैक एंड दे विल आस्क यू टू पिक अ न्यू वन. आई हैव डन दैट एंड बिलीव मी कि जी शुरू में यकीन ही नहीं आता दैट पीपल वुड बी सो ट्रूथफुल and they will be so nice. आप उनको कहते जी well the propeller is making the noise, that's why, and they would say कि जी आपने कब खरीदा था. मैंने कहा जी मैं 2 हफ्ते हो गए, I bought it लेकिन I was busy, that's why I couldn't come.
It's fine, no problem. You just keep it over there and you get a new one. This is how it works. This is what I call a service. The food is not good, and they would say, oh, it doesn't matter, I'll replace it. I had a very good experience in terms of this service recovery model. I called a restaurant for the food, and it was basically a delivery. So when the food came and it was all spilled over, खाना खराब नहीं हुआ था, लेकिन जिस तरीके से वो लाया गया था, it got spilled. So I just called that person, and I was expecting कि लड़ाई झगड़ा होगा, and I'll be talking that, okay, you wasted my money, my guests are here, and this is how you. And before I said anything, what happened was that I'm like, okay, ji, Assalamu alaikum, I have sent you, your order just came, you have delivered the goods, but they are not in the shape that I asked for. It's horrible. And the person just said that, we are sorry, sir, and we are sending you the new. Everything will be replaced. Now that is service. And ये नहीं है कि भी it was something कि जी it's a word of mouth, and वो जो मैं search की बात कर रहा हूँ, I would always say कि भी यार उस होटल के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, दे आर वेरी गुड, वेरी कर्टियस, और उनका जो सर्विस मॉडल है इट इज़ हाईली वो जिसे कहते हैं गुड. सो इंस्टीट्यूट सर्विस गारंटीज वेयर अप्रोप्रिएट. आप गारंटीज भी देते हैं कि जो अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो हम आके इसको रिप्लेस कर देंगे या इट विल बी रिप्लेस्ड. कंडक्ट अप्रोप्रिएट कस्टमर सेटिस्फैक्शन सर्विस. हमेशा कस्टमर सेटिस्फैक्शन को आपने देखते रहना है, बिकॉज दैट इज बेसिकली योर आफ्टर सेल सर्विस. एंड रिमेंबर दैट पीपल मेक डिफरेंस, जो कि हम पीछे बात करते हैं, दैट एम्प्लॉयज आर इम्पॉर्टेंट इन आवर ऑर्गेनाइजेशन. अब हमारा जो काम है, जब भी हमने कोई स्ट्रैटेजी बनानी है, व्हाट वी आर लुकिंग इनटू, कि हमने इस गैप को अंडरस्टैंड करना है. इफ यू आर अनएबल टू अंडरस्टैंड द गैप, इट इज नॉट गोइंग टू वर्क आउट. अब यहाँ पे क्या होते हैं, दो हैं, एक आपका प्रोवाइडर है और एक आपका कस्टमर है. प्रोवाइडर क्या कर रहा है, there are some system standards, there is some service being delivered, the communication, and on the other side आपका जो customer है, what he is doing, उसकी एक perceived service है कि जी अगर ये ऐसी मिलेगी तो this is what I'm going to have. मैं कहता हूँ हमारे सरीना कहता जी okay, have the food at our place, तो perceived होगा कि it's an expensive restaurant, the food is going to be good and all that. So आपकी फिर एक्सपेक्टेड सर्विस होती है. एंड कस्टमर और जो प्रोवाइडर है, इनके दरमियान जो गैप होता है, इसको हमने एवेल्युएट करना है और इसको हमने रिमूव करना है. जो जिस तरह प्रोवाइडर कह रहा है कि दिस इज़ हाउ इट इज़ गोइंग टू बी, कस्टमर को वैसा परसीव करना चाहिए, उससे बेहतर परसीव करना चाहिए, और उस जो प्रोवाइडर है उसकी सर्विस उससे मच बेटर होनी चाहिए. सो पहला क्या हो जाता है, गैप आपका सर्विस क्वालिटी गैप होता है. दूसरा गैप होता है सर्विस डिज़ाइन गैप. तीसरा गैप होता है प्रोसेस डिज़ाइन गैप. चौथा गैप होता है प्रोडक्शन गैप. पांचवा गैप होता है पर्जरी गैप. एंड वंस यू हैव अंडरस्टूड दीज गैप्स, अब हम इनको रिमूव करेंगे. और इनको रिमूव करते हैं कैसे करना होता है. अंडरस्टैंड द सर्विस गैप्स मॉडल दैट वी हैव डन. डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट फॉर्मल सर्विस रिकवरी मॉडल. अब डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट फॉर्मल सर्विस रिकवरी मॉडल में क्या करना है, कस्टमर जब भी आपके पास आता है इन सर्विस, रिमेंबर he is loud, he is angry, and what we have to do is, हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, listen. Why he is loud, why he is angry, why he is in a bad mood, because he wants you to listen. So हमारी जॉब क्या है, listen. Then apologize and so show empathy. That's perfect protocol कि जी I'm so sorry, हो गया, I'll have it removed. Then I'll ask the recovery question कि जी what can we do to satisfy you completely. Airlines में बहुत ज़्यादा होता है, hotels में बहुत ज़्यादा होता है, banks में होता है कि जी क्या करें तो हाँ you will be a satisfied customer. Fix the problem quickly and prioritize customers and escalate if needed. Personally, given my profession, I always keep checking कि भी ये वाले models काम करते भी हैं कि नहीं, कि these are just in the books. I told you about Nestle. My personal experience, it worked out. And they kept on taking the feedback even after 3 months that if I was a satisfied customer or not. With TCS, yes, they did resolve the problem, but it wasn't a speedy resolution. They are slow. I don't know, you have to make 4 to 5 calls to remind them that you are their valued customer. Just sort it out. But they don't do it. Like this restaurant, spick of a second. You don't have to convince them, and they did that. So
ये वाले अगर आपके सर्विस रिकवरी मॉडल्स अगर होंगे तो कस्टमर फील्स सेफ, कस्टमर फील्स सिक्योर, कस्टमर को परेशानी नहीं होती दैट इफ आई गो टुमारो वो कहेगा जी सॉरी आप कौन। That's what we have seen, that's what the perception is in Pakistan कि जी आप जब भी वो किसी सर्विस रिकवरी मॉडल किसी ऑर्गेनाइजेशन का देखते हो कहते हैं जी आप रसीद लेके आए, आप ये करें, आप वो करें, एंड दे जस्ट मेक अ कंप्लीट वो जिसे कहते हैं ना एक इजी टास्क एंड इम्पॉसिबल टास्क का बना देते हैं। ठीक है, दिस इज नॉट व्हाट वी आर लुकिंग इनटू सर्विस। आप जब सर्विसेज में ऑपरेशन स्ट्रैटेजी बनाते हैं इट हैज टू बी स्विफ्ट, इट हैज टू बी समथिंग कि जी आपका जो कस्टमर है वो क्या करे, सेफ फील करे, और द प्रायोरिटी इज कि आप कस्टमर को इंपॉर्टेंस है और उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करें ऑन प्रायोरिटी, और उसके बाद फॉलो अप करें इज द प्रॉब्लम फिक्स्ड एंड इज द रिलेशनशिप फिक्स्ड। क्योंकि अगर सम टाइम प्रॉब्लम फिक्स हो जाता है लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं कहता हूँ जी आई एम नॉट गोइंग टू कम टू योर शॉप, इट्स नॉट, सो इट हैज टू बी। आई विल गिव यू अ वेरी स्मॉल एग्जांपल ऑफ अ सर्विस रिकवरी मॉडल। अब उसमें ये है दैट देयर वाज you go to a shop and the price is around 5 हाँ चलो 5 रुपए या 6 5 और 4, ठीक है। Why I'm saying that कि जी आपको उसने चेंज इतना देना है, या 5 का कॉइन देना है या उसने 4 के कॉइन्स आपको देने हैं। Now there are some shopkeepers which start assuming कि जी we are not going to give you the back because चेंज तो है नहीं और आपने 4 पे लेके क्या वापस करना है। But some people would give you the chewing gum or anything, or some people would apologize कि जी मेरे पास नहीं है। Some people would make you stand and still they would say कि सर वो change नहीं है। Now these are different scenarios. और है कितना, maybe you are not even going to use that 5 rupees or 4 rupees. On petrol pumps a lot of things happen, but this thing is very common. But आपके service model में I was giving to one of the training to one of the organizations, and what they made show was कि जी अगर आपके पास नहीं है tell them, और why are you taking, अगर 106 हैं तो आप उनको 100 का दे दो, 6 का खुद लॉस कर लो, because if you do not have it and then you say कि जी सॉरी मेरे पास चेंज नहीं है, तो he is not going to ask for it, he will feel bad। या अगर आप उसको 100 दे दो, उसको सर मेरे पास चेंज नहीं है and I don't have change, so he might give you कि जी you keep the 10। But until and unless you don't ask the customers, don't assume that you are bound to keep the money, because that will not fix the relationship. The customer is not going to come back, और अगर वो आता भी है मजबूरी है because of that shop, what they will do is that they will just come, they will come with the exact change and then they will, it won't make the situation better, ठीक है ना। So remember कि है ये बहुत माइनर सी बात in the service industry कि जी एक चेंज नहीं मिल रहा, मैंने यूज भी नहीं करना, I might throw it, but you have to at least acknowledge कि जी मैं ये चेंज करवा रहा हूँ या मैं आपको ये दे रहा हूँ। उसके बाद institute service guarantees wherever it is appropriate। So what is a good service guarantee? It should be unconditional, ना conditions डालने, जैसा कि Walmart में my experience, they don't say anything, you just go them, you tell the truth and they trust you, then they should be meaningful। I once got a spam kind of guarantee, I got it and then when I went for that उन्होंने कहा जी ये तो है ही नहीं, it's not, इसमें इतने months लिखे हुए थे, इतने पैसे थे, it's not, और ये तो इस एरिया के है ही नहीं, ये तो इस एरिया में जानी थी। It was quite confusing and I was not a happy customer, ठीक है। So it should be meaningful, it should be easy to understand, it should be communicate both for the customers and for employees, and it should be painless to invoke। अगर आपने उसको करना है ये ना लगे कि यार रहने दो कि जी I have to go that far, और उन्हें फिर भी नहीं करना, there are zillion questions, so why to go for it? Because remember, when you are not fixing it, or if you are given guarantee and if you are not doing it, then you are actually creating a problem in terms of you are losing a customer, and we can't lose a customer in our operations just कि मेरी जो सर्विस में जो सर्विस ऑपरेशन स्ट्रैटेजी बनी, that is horrible, that is bad, this is part of your service strategy। Well, ladies and gentlemen, I'll finish up over here, and next time we are going to talk about your lean management and your business re-engineering, जो कि आपके quality tools हैं जिनको हम क्या कहते हैं, they are the substitutes for your operations strategy। Till then, I would request you, I hope you are actually reading the newspapers, you are actually reading the current articles which are coming with reference to your operations, to the business sector in Pakistan.
डू थिंक अबाउट इट कि जी जब आप सर्विसेज का आप करते हैं, क्योंकि मोस्टली अभी तक हमने जो किया है वो हम प्रोडक्शन से हम रिलेटेड ऑपरेशन स्ट्रैटेजीज बना रहे थे और ये कर रहे थे, लेकिन सर्विसेज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जहाँ पे आप मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ आपकी सर्विसेज भी बहुत ज़्यादा काउंट होती हैं. तो टिल देन रीकैप द लेक्चर, थिंक अबाउट कि जी अब सर्विस में किस तरीके से हम अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, सर्विस में हम किस तरीके से हम अपनी जो कस्टमर है उसको सेटिस्फाइड कर सकते हैं और हम सर्विस में किस तरीके से अपने कस्टमर को रिटेन कर सकते हैं. एंड नेक्स्ट टाइम we will talk more about the service models. और जैसे ही कोर्स आगे चलता है we will be sharing more about कि जी आप सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग और को प्रोडक्शन में आप किस तरीके से अपनी ऑपरेशन स्ट्रैटेजीज को इफेक्टिव और एफिशिएंट बना सकते हैं. टिल देन हैव अ नाइस डे. अल्लाह हाफिज.